Good morning, students. Last class we have studied about the standard hydrogen electrode and their working principle when they are working as an anode or when they are working as cathode, and this is the already diagrammatically we have discussed. And if we want to determine the standard electrode potential of any electrode, so in that condition we are taking the reference of hydrogen electrode to determine the electrode potential of any one metal. So in that condition, suppose zinc we are taking, and here we are taking as a hydrogen electrode as reference here, and here also in case of copper we are taking the hydrogen electrode as reference here. So at that condition we can see the copper is working as cathode here, and hydrogen is working as anode here, and here zinc is working as anode and hydrogen is working as cathode. So these are the actually representation. Next one we are coming for cell potential. So the potential difference between the two half cells electrode potential is called the cell potential. जब दोनों potential difference दोनों हाफ सेल्स की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को आप डिफर करोगे और डिडक्ट करोगे, सो दैट इज एक्चुअली कॉल्ड द सेल पोटेंशियल. Actually example of that one, E naught cell, we are representing the cell potential in E naught cell equals to E naught cathode minus E naught anode. That is the formula we have to use here. So in that condition both the cathode and anode electrode potential must be known to us. What is the electromotive force? Now the difference between the electrode potential of the two half cells, same thing is there, but when the current is not drawn from the cell, when no connection is there, at that condition what is the difference between these two electrode half cell, that is actually called the electromotive force. Okay, electromotive force is the reduction potential of cathode minus reduction potential of the anode. So same thing is there, and it depends upon the following factors: nature of the metal and its ions, and concentration of the electrolytes, and temperature. So what is the metal we are using here, and what is the electrolytes, the concentration, what is happening, because you will understand that only when you are doing the numerical, and the concentration of electrolyte and temperature. Okay, so these are two. Actually this is cell potential when it is actually any connection is there, and when now connection is there, at that condition we are representing same condition is there, that is called electromotive force or EMF. Cell representation. Okay, so now we are coming, electromotive force is over. Now cell representation, and electrochemical cell is represented in the following manner. कैसे हम represent करते हैं? Now anode is written on the left, cathode is written on the right, and a vertical line separates the metal from the metal ion, and the double vertical line indicates the salt bridge connecting the two half cell. So look at there, one example के साथ हम बता देते हैं इधर. जैसे ये example, ये reaction है, copper solid plus silver in ionic form, that is in aqueous. That means we are taking the silver nitrate हो या silver sulfate हो, जो भी हम लिए हैं इधर. और कॉपर 2 प्लस मीन्स कॉपर पहले मेटल में था, कॉपर कन्वर्ट हो गया किसमें ना, आयोनिक फॉर्म में, है ना, सॉल्यूशन में आ गया, कॉपर सल्फेट बन गए और 2Ag. इसका मतलब क्या है कि when the reaction is happening in that condition we have to find out which one is oxidized and which one is reduced here. So we can see here copper is converted into copper 2 plus, that means it is releasing the electron, and that means it is oxidation occurring. And Ag plus is taking the electron and converting into Ag metal, that means here reduction is occurring. So now how to find where the reduction is there? In cathode reaction is given to us, where the oxidation is there, reaction is given to us. How to represent the cell here? The anode must be written first, oxidation must be written first, and reduction must be written at the second half, and both the reactions are separated by double line. Double line is representing the salt bridge, and both the metal and the ions are separated by single line. Look at there. First we are writing which one here, now oxidation condition, copper is converted into copper 2 plus, so that we have to write down first. So copper slash copper 2 plus, so you have to put one line between the metal and its ions. ठीक है, तो पहले कॉपर लिख लिए, फिर स्लैश दिए, कॉपर सॉलिड, कॉपर 2 प्लस एक्वस.
ठीक है। फिर ये हो गया ऑक्सीडेशन कंडीशन। और रिडक्शन कंडीशन आपको कहाँ लिखना है ना, राइट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड में लिखने के पहले हम डबल लाइन दे देते हैं, दैट डबल लाइन इज एक्चुअली सेपरेटिंग बोथ द हाफ सेल हेयर एंड मेंशनिंग द सॉल्ट ब्रिज हेयर। सो Ag प्लस, नाउ सेकेंड हाफ में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो Ag प्लस इन एक्वेशन इज टेकिंग द इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्टिंग इनटू Ag. सो सेल रिप्रेजेंटेशन इज Cu/Cu2 प्लस /Ag प्लस Ag. सो Ag प्लस /Ag. सो दिस इज द सेल रिप्रेजेंटेशन। अभी आपको फाइंड आउट करना है कि EMF ऑफ द सेल है ना। तो EMF ऑफ द सेल आपको फाइंड आउट करना है। तो क्या हम लोगों ने ऑलरेडी पहले डिस्कस किए कि E राइट माइनस E लेफ्ट। अगर आपको E सेल फाइंड आउट करना है तो E राइट माइनस E लेफ्ट, और we can say E cathode minus E anode. Okay, so we will discuss with one example. Look at there. One example is given to us. Formulate the electrochemical cell representing the reaction. Okay, so what is the reaction given to us? 2Cr plus 3Fe2 plus, production is coming here, 2Cr3 plus and 3Fe. So look at that, what is oxidized here? Now chromium is oxidized to Cr3 plus because here electron is releasing, and Fe2 plus by taking the electron reduced to Fe metal here. अच्छा, कैलकुलेट द ई नॉट सेल भी आपको फाइंड आउट करना है। ई नॉट सेल मतलब सेल पोटेंशियल भी आपको फाइंड आउट करना है, जहाँ पे दोनों अलग अलग हाफ सेल की आपको ई नॉट पोटेंशियल ई नॉट दे के रखा है। तो ई नॉट ऑफ Cr3 प्लस Cr मतलब क्रोमियम की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के दे के रखा है -0.74 वोल्ट, एंड आयरन की दे के रखा है -0.44 वोल्ट। और ये दोनों को अप्लाई करके आपको इसकी इस सेल की, ये एक सेल है, सेल की रिएक्शन है, तो इस सेल की आपको ई नॉट सेल और सेल पोटेंशियल आपको फाइंड आउट करना है। पहले तो रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं, कैसे? पहले ऑक्सीडेशन रहेगा, दैट मीन्स Cr/Cr3 प्लस, ठीक है, देख लो Cr/Cr3 प्लस, उसमें सॉलिड और एक्वा सब मेंशन कर देना। उसके बाद हमें डबल स्लैश देना है। क्यों डबल स्लैश? क्योंकि दोनों हाफ सेल को आप सेपरेट करोगे, तो सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट कर दिया आपने डबल स्लैश से। अभी आपको क्या लिखना है? रिडक्शन। रिडक्शन में क्या है? Fe2 प्लस इज कन्वर्टेड इनटू Fe, सो दैट वी आर राइटिंग Fe2 प्लस एक्वस सिंगल स्लैश Fe सॉलिड। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ओवर। नाउ ई नॉट सेल आपको सेल पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो ई नॉट सेल मतलब क्या? ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट, और ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड है। सो कैथोड कौन सा है? जहाँ पे रिडक्शन हो रहे हैं, तो रिडक्शन में कौन है? आयरन। और ऑक्सीडेशन में कौन है? ना क्रोमियम। तो पहले हम जो आयरन की जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसको पहले रिडक्शन पोटेंशियल लिख लेते हैं -0.44, और माइनस क्रोमियम की जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है ना, -0.74। तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो नाउ बाय एडिंग दैट वन वी कैन गेट 0.30 वोल्ट। सो दिस सेल, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल or cell potential of this cell is 0.30 volt. Okay, next one we are coming main important thing, that is called electrochemical series. The arrangement of metals in decreasing order of tendency to lose electron is called the electrochemical series. Okay, so यहाँ पे what is coming here? So look at there, it is also given in your book also. Look at that, this is the series here, and here you can see the fluorine is coming here positive reduction potential. So all are actually arranged on by reduction potential. This is reduction potential. You can see that on all are taking the electron and converting into the if it is converting into the positive charge to metal, positive charge to iron to metal, iron to solid, they are converting. Okay, so now we can see that one, it is positive and it is converting into 0, and it is decreasing fast, and it is coming to 0 where? Here in case of hydrogen. So already you have already discussed the electrode potential or the reduction potential of hydrogen is actually 0, and then it is coming here minus. Look at the who is coming most negative, it is coming lithium. One more thing you can see that one, increasing the strength of oxidizing agent. When we are going up, the oxidizing power is increasing, and when we are going down, the reducing agent, that means reducing agent means they can reduce other very easily and oxidize itself. मतलब ऑक्सीडाइज मतलब लूजिंग इलेक्ट्रॉन, मतलब जितना आप नीचे की तरफ आओगे उसका टेंडेंसी ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन विल बी मोर एंड मोर. And when you are going up, so accepting of electron is coming here more. So they are actually oxidizing agent, means they are oxidizing other, and खुद क्या हो जाता है? Itself they are reduced. Clear now? So now if we are coming here, you can see that one. Look at there.
na lithium, potassium, calcium, sodium, magnesium, aluminium. So that electrochemical series already you have nickel, stannous, lead, hydrogen, then silver. So in that way, copper it is coming here. Then it is coming about the aurum also will be coming there. Aurum is also coming there. So we can see when we are coming. So this is actually following which one? The electrochemical series actually. Means that reactivity series actually it is following there. So already yesterday already have discussed that one. So when we are going towards down, their reducing power is coming more, means they can oxidize very easily, है ना. सो हाइड्रोजन से जैसे आप लिथियम ले लो, लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, दे कैन लूज देयर इलेक्ट्रॉन मोर एंड मोर अकॉर्डिंग टू द सीरीज ऑल्सो यू कैन सी, बट मोर देन हाइड्रोजन. हाइड्रोजन से नीचे जो आएगा, सो दे आर रिड्यूस्ड मोर इजीली देन द हाइड्रोजन. मतलब अगर सिल्वर है, कॉपर है, तो कॉपर इज इजीली रिड्यूस्ड देन द हाइड्रोजन, क्योंकि कॉपर की जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल इज कमिंग हेयर 0 से ज़्यादा है. ठीक है, दिस इज टूवर्ड्स पॉजिटिव एंड दिस इज टूवर्ड्स negative. Okay, so why this electrochemical series is too much important to us, because this is actually showing so many characteristics here. जैसे to compare the relative oxidizing and reducing power, है ना. अगर मोर पॉजिटिव वैल्यू हो, ग्रेटर इज द रिड्यूसिंग पोटेंशियल, है ना. तो पॉजिटिव वैल्यू अगर ज़्यादा हो तो रिड्यूसिंग पावर क्या हो जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा हो जाएगा. एंड मोर इजीली इज द सब्सटेंस रिड्यूस्ड और स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. सो लुक एट देयर, व्हेन यू आर कमिंग अप, सो पॉजिटिव इज देयर, सो मोर इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, दैट मीन्स व्हाट इज कमिंग हियर, द रिडक्शन पोटेंशियल इज कमिंग मोर, सो मोर इजीली द सब्सटेंस और एलिमेंट रिड्यूस्ड एंड स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. खुद दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड हो जाएगा. ठीक है. टू कंपेयर द रिलेटिव एक्टिविटी ऑफ द मेटल्स, मतलब ग्रेटर द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ अ मेटल, मोर इजीली इट कैन लूज इलेक्ट्रॉन. अच्छा देखो, आप जितना माइनस की तरफ जा रहे हो इट इज रिडक्शन पोटेंशियल, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में क्या हो जाएगा, ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा. तो जब भी आप नीचे की तरफ जाओगे, देखो इसकी रिडक्शन पोटेंशियल -3.05 इसकी लिथियम की, बट इसका ऑक्सीडेशन क्या हो जाएगा, +3.05. ठीक है. तो जितना पॉजिटिव ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आएगा उतना ही क्या हो जाएगा ना. और सीधी सी बात ये है कि जितना आप नीचे की तरफ और नेगेटिव की तरफ जाओगे, मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन मतलब रिडक्शन पोटेंशियल, दैट मीन्स इट इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट एंड इटसेल्फ दे आर ऑक्सीडाइजिंग वेरी इजीली, मीन्स दे कैन लूज देयर इलेक्ट्रॉन वेरी इजीली. ऐसे अगर मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में कन्वर्ट करें तो मैग्नीशियम क्या हो जाएगा, मोर इजीली इट कैन लूज इट्स इलेक्ट्रॉन देन एल्यूमिनियम. दैट मीन्स इट इज वर्किंग एज विच वन, रिड्यूसिंग एजेंट more than aluminium and oxidize easily more than aluminium. This is the condition. Okay, so this is given to us magnesium, zinc, iron, copper, silver, in that way. नेक्स्ट वन यू आर कमिंग फॉर स्टैंडर्ड EMF सेल. सो अगर आपको EMF फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ एनी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, मीन्स व्हेन नो कनेक्शन इज देयर, सो द कंडीशन इज E नॉट राइट माइनस E नॉट लेफ्ट. सो हेयर यू कैन फाइंड आउट द, एंड दोनों ही आप क्या यूज़ करोगे ना, रिडक्शन पोटेंशियल. ये चीज़ हमेशा याद कर लो कि दिस सीरीज एक्चुअली शोइंग द रिडक्शन पोटेंशियल. आपको अगर इसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो ऑपोजिट ले लेना है आपको. तो यहाँ पे जब भी E नॉट सेल आप फाइंड आउट करोगे तो क्या लेना है आपको, रिडक्शन पोटेंशियल दोनों की, ना हाफ रिएक्शन जो हो रहा है राइट हैंड साइड इलेक्ट्रॉन एज वेल एज लेफ्ट हैंड साइड इलेक्ट्रॉन, दोनों की रिडक्शन पोटेंशियल. बट इसको आपको डिडक्ट कैसे करना है, E नॉट राइट माइनस E नॉट लेफ्ट. बस यही फॉर्मूला आपको याद रखना है, E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड. ओके, सो नाउ नेक्स्ट वन, प्रेडिक्ट वेदर अ मेटल रिएक्ट्स विद एसिड टू गिव हाइड्रोजन गैस. ये कैसे करेंगे ना, अगर हाइड्रोजन से जो ऊपर है, ये रहा आपके हाइड्रोजन जो सीरीज है 0 वाला, ये रहा 0, ये हाइड्रोजन. सो हाइड्रोजन के जो मोर पॉजिटिव वैल्यू है हाइड्रोजन से, और हाइड्रोजन के नीचे जो प्रेजेंट है केमिकल रिएक्टिविटी सीरीज में, तो दे कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन. दैट इज द मेन थिंग. हाइड्रोजन के ऊपर जितने हैं दे कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन. That means in that condition hydrogen can be reduced and other will be oxidized easily. सो यहाँ पे देख लो, ये हाइड्रोजन है, ये रिड्यूस हो जाएगा और ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा. लेकिन कौन करेगा ये, द मेटल्स विथ नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल और ऑल मेटल्स लाइंग अबव द हाइड्रोजन इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज रिएक्ट विथ एसिड टू गिव हाइड्रोजन. मतलब हाइड्रोजन के जो ऊपर आएगा, मतलब विथ मोर नेगेटिव जो इलेक्ट्रोविटी लाइंग
और यू कैन से द नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल वाले जितने मेटल है दे कैन रिप्लेस हाइड्रोजन, है ना, फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। बट जो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन से ज़्यादा हो दे कैन नॉट रिप्लेस। दैट मीन्स हाइड्रोजन के ऊपर जो रिएक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर मेटल प्रेजेंट होता है, सो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बता रही हूँ, और इसके हिसाब से हाइड्रोजन के नीचे आ जाएगा ये, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, और इसके हिसाब से हाइड्रोजन से जो मोर नेगेटिव और नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल वाले जो होता है, सो दे आर एक्चुअली रिड्यूसिंग और दे कैन रिप्लेस द हाइड्रोजन और दे कैन रिड्यूस द हाइड्रोजन। ओके, टू प्रेडिक्ट द स्पॉन्टिनिटी ऑफ अ रिएक्शन, स्पॉन्टिन्यूअस होगा कि नहीं रिएक्शन कैसे पता चलेगा ना, अगर इनॉट सेल और सेल पोटेंशियल पॉजिटिव में आए या ईएमएफ जब पॉजिटिव में आए तो हम उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि दैट रिएक्शन इज स्पॉन्टिन्यूअस। ठीक है, जैसे यहाँ पे बोल के रखा है कि फॉर अ रिडॉक्स रिएक्शन टू बी स्पॉन्टिन्यूअस द ईएमएफ ऑफ द सेल मस्ट बी पॉजिटिव। कैसे, देखो एक रिएक्शन के साथ हम बता देते हैं, यहाँ पे सिल्वर के साथ H2SO4 की रिएक्शन, प्रोडक्शन क्या दिए, ये रिएक्शन आपको बता रहे हैं, ये रिएक्शन स्पॉन्टिन्यूअस है कि नहीं ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो सिल्वर H2SO4 सिल्वर मेटल के हिसाब से H2SO4 एक्वस कंडीशन में है, प्रोडक्शन हो गया Ag+, Ag टू Ag+ में कन्वर्ट हुआ, ये एक्वस सॉल्यूशन में आ गए, और हाइड्रोजन प्लस में था, ये कन्वर्ट हो गया हाइड्रोजन गैस में। ठीक है, तो सिल्वर ऑक्सीडाइज हुआ और हाइड्रोजन रिड्यूस हुआ, ये बात है। रिप्रेजेंटेशन कैसे करोगे, जो ऑक्सीडाइज हुआ वो पहले और जो रिड्यूस हुआ बाद में, डबल लाइन के बीच। अभी क्या है, अभी आपको ई सेल इनॉट सेल फाइंड आउट करना है। इनॉट सेल कैसे है ना, इनॉट कैथोड माइनस इनॉट एनोड, यहाँ पे कैथोड कौन है ना हाइड्रोजन, और एनोड कौन है सिल्वर 2+। ठीक है, मतलब एनोड ये सिल्वर है, एनोड के हिसाब से काम करते हैं। तो कैथोड है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के लिए 0 है हमें पता है, और सिल्वर के लिए क्या होता है 0.80। सिल्वर के 0 से क्या आ जाएगा, पॉजिटिव में आएगा, और 0 से ऊपर आएगा तो 0.80। तो ये एक्चुअली वैल्यू आपको गिवन रहेगा जब भी आपको स्पॉन्टिन्यूटी फाइंड आउट करना रहेगा। तो नाउ इट इज़ कमिंग माइनस, तो आफ्टर ऑल ई नॉट सेल किसमें आएगा, माइनस, तो डेफिनेटली ये रिएक्शन स्पॉन्टिन्यूअस नहीं है। यू कैन सी दैट ऑन ऑल्सो, हाइड्रोजन से सिल्वर क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अगर देख ले हाइड्रोजन से नीचे रहता है, तो सिल्वर कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन। तो अगर आप ये तो बात है, ये तो सीधी सी बात है, लेकिन अगर आपको बोला है कि इनॉट सेल से आप मतलब इसको प्रूफ करो जे दिस इज स्पॉन्टिन्यूअस एंड नॉन स्पॉन्टिन्यूअस, सो दिस इज द वे। सो व्हेन यू आर गेटिंग नेगेटिव वैल्यू ऑफ इनॉट सेल दैट मीन्स the reaction is non-spontaneous. Okay, one more thing we have to learn today, that is Nernst equation। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो हम लोगों ने बोला है कि स्टैंडर्ड कंडीशन के अंडर में जब आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करोगे, व्हाट इज द स्टैंडर्ड कंडीशन ना, कॉन्सेंट्रेशन मस्ट बी 1 मोलर, इलेक्ट्रोलाइट जो आप ले रहे हो, जो सॉल्यूशन ले रहे हो, एंड टेम्परेचर इज 298 केल्विन। तो ये दोनों कंडीशन अगर रहे तो ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, बट द इलेक्ट्रोलाइट concentration is not 1 m, so at that condition your temperature is different, so at that condition we can find out the inert cell, or we can say that we can find not inert cell, we can find out the cell potential by applying the Nernst equation। ठीक है, जब आप अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन में करोगे तो इनॉट सेल आ जाएगा, और जब स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है तो एट दैट कंडीशन वी कैन फाइंड आउट द सेल पोटेंशियल बाय रिप्रेजेंटिंग व्हिच वन, ई सेल, है ना। सो नाउ यू कैन सी दैट वन, ई सेल आप कैसे फाइंड आउट करोगे, तो दैट इज एक्चुअली डेरिवेशन, कैसे हम फाइंड आउट करें इसको, और दैट इज एक्चुअली कॉल्ड नर्न्स्ट इक्वेशन। सीधी सी बात ये है कि एक इक्वेशन आपको दे के रखा है Mn+ और मेटल की कोई सा भी Zn2+, जैसे एक एग्जाम्पल भी आप दे के रखा Zn2+ 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट हो गया Zn मेटल में, तो नर्न्स्ट इक्वेशन। तो ये कंडीशन क्या है ना, इसका इलेक्ट्रोलाइट जो कॉन्सेंट्रेशन दैट इज नॉट एक्चुअली 1 मोलर, और टेम्परेचर मे नॉट बी मेंटेनिंग ऑन 298 केल्विन। सो एट दैट कंडीशन Mn+M, है ना, जो भी मेटल Zn2+ Zn यू कैन से, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे ना, E नॉट Zn2+ Zn RT/NF। R is a gas constant, T means temperature in Kelvin, F means 1 Faraday, that means charge of 1 mole of electron, F means 1 Faraday, and N means the number of electron taking part in the reaction, है ना। तो RT/NF ln concentration of M divided by concentration of Mn+, ठीक है, product by reactant। तो नाउ इट इज़ कमिंग अबाउट द, अगर आपको उसी कंडीशन में ई सेल फाइंड आउट करना है, दैट इज द वे। सो ऑलरेडी आई टोल्ड यू व्हाट आर द एक्चुअली रिप्रेजेंटेशन है। नाउ वी आर कमिंग जो फॉर प्योर सॉलिड, जब हम यहाँ पे एम सॉलिड देख रहे हैं, हम पता ही है कि जब सॉलिड लिक्विड या गैस रहेगा
at 1 atmospheric pressure, the molar concentration is taken as unity. तो आप इसके बदले में आपको क्या लेना है, जैसे सॉलिड है तो आप इसको क्या लोगे 1. तो लास्ट ऑफ ऑल क्या है ना, ई सेल मतलब जो स्टैंडर्ड कंडीशन में नहीं है, इक्वल्स टू ई नॉट स्टैंडर्ड कंडीशन में जो है माइनस RT/NF ln 1/Mn प्लस. ठीक है, 1 क्यों लिए मैंने, क्योंकि यहाँ पे मेटल दे के रखे हैं. ठीक है, तो ई नॉट माइनस 2.303 RT. यहाँ पे ln को आपने, ये नेचुरल लॉगरिथम है, इसको आप लॉग में कन्वर्ट करोगे तो डेफिनेटली आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 2.303 RT NF बाय लॉग 1/Mn प्लस. ई नॉट माइनस इसको अगर आप n को छोड़ के f की वैल्यू कितना है 96,500 है ना. तो आपका अगर यहाँ पे मैं एक सॉल्यूशन बता देती हूँ कि 1 mole of electron equals to 6.023 into 10 to the power 23 number of electron. एंड इसको 1 इलेक्ट्रॉन की चार्ज क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज इक्वल्स टू क्या है ना 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम. ठीक है, तो अभी आपको अगर 1 फैराडे इक्वल्स टू क्या होगा ना 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, मतलब चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको हम 1 फैराडे बोलते हैं ना, चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन. ओके, so it is coming 1.602 into 10 to the power -19 and it will be coming लगभग 96,500 कूलम. ठीक है, so this is that's why 1F की जगह में हम क्या यूज़ करेंगे इधर ना, 1F equals to 96,500 कूलम and T equals to 298 Kelvin. Formula actually this is the formula. ठीक है, तो now we are coming for the next one. अगर डैनियल सेल की सपोज मान लो यहाँ पे सॉलिड में कन्वर्ट हुआ है, अगर सॉलिड में कन्वर्ट नहीं होते तो एट दैट कंडीशन क्या करते. जैसे एक एग्जांपल आपके पास है, डैनियल सेल वाला एग्जांपल आपने लिए है ना. डैनियल सेल में क्या किए ना, आपके पास ये है रिएक्शन Zn कॉपर 2+ में कॉपर सल्फेट, प्रोडक्शन जिंक सल्फेट एंड कॉपर. ठीक है, हु इज ऑक्सीडाइज्ड, जिंक इज ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडेशन ऑकर इन जिंक एंड कॉपर इज रिड्यूस्ड हियर. तो कैथोड कौन सा है, कॉपर, और जिंक क्या है, एनोड. इतना तो आपके पास यहाँ पे दे के रखा है, कैथोड क्या है, कॉपर. एंड इसके लिए हम क्या, कॉपर के अगर अलग से इलेक्ट्रोड की आप सेल पोटेंशियल फाइंड आउट करोगे तो क्या लिखेंगे ना, ECU2 + Cu ई नॉट Cu2+/Cu RTNF मीन्स RT2F. यहाँ पे 2 क्यों देखे रखा है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट कर रही है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2F ln 1/Cu2+ एक्टिवेशन. 1 क्यों आए, कॉपर के लिए 1 आ गया. ठीक है, Zn के लिए क्या आएगा, वही सेम थिंग आएगा है ना. तो ln यहाँ पे 1/Zn2+ एक्वास और बाकी सब सेम है. अभी सेल पोटेंशियल आपको फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो अगर सेल पोटेंशियल आपको फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करें है ना, सेल पोटेंशियल तो कैसे फाइंड आउट करेंगे ना, ई सेल इक्वल्स टू, मतलब डैनियल सेल के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इट इज कमिंग अबाउट द ई कैथोड माइनस ई एनोड. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई कैथोड की जगह हम क्या लिखेंगे, कैथोड कौन सा था, Cu2+/Cu, माइनस एनोड में कौन था ना, Zn2+. देखो दोनों कंडीशन में हमें क्या लेना है, भले यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहे, लेकिन आपको लेना क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल. पोटेंशियल कौन सा लेना है, रिडक्शन, इसलिए Zn2+/Zn. बट यही चीज़ जब आप सेल रिप्रेजेंटेशन में आओगे तो आपको रिडक्शन के हिसाब से लिखना है, और ऑक्सीडेशन को क्या लिखना है, Cu2 है ना, मतलब या तो रिडक्शन हुआ है, यहाँ पे क्या लिखना था, Zn2 लेकिन यहाँ पे जब भी आप ई सेल को फाइंड आउट करोगे तो एट दैट कंडीशन बोथ द रिडक्शन पोटेंशियल वी हैव टू यूज है, तो इसलिए रिडक्शन की जो सिंबल हमें यूज़ करनी है. ओके, सो नाउ ई नॉट ECU2+/Cu के लिए हम क्या यूज़ करेंगे ना, ई नॉट है ना Cu2+/Cu माइनस RT/NF, समझ में आ गए, ln 1/Cu2+. ठीक है, और कैथोड के लिए यहाँ इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, सेम वे में हम यूज़ करेंगे माइनस ई नॉट Zn2+Zn है ना, माइनस क्या आएगा, RT/NF
यहाँ पे क्या आ जाएगा ना, NF वही कंडीशन, और अच्छा यहाँ पे माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा है ना, क्योंकि ये मैंने ब्रैकेट नहीं दिया तो प्लस हो जाएगा। RT बाई NF फिर ln 1 बाई Zn2 प्लस, ठीक है। तो अभी क्या हो गया, इन दोनों को हम अलग कर लेते हैं, तो इक्वल्स टू E0 Cu2 प्लस स्लैश Cu माइनस E0 Zn2 प्लस स्लैश Zn, ठीक है, माइनस RT बाई NF, दोनों कंडीशन में RT NF है, तो अभी ln ले लिया मैंने, ln है ना 1 बाई Cu2 प्लस माइनस है ना, अभी क्या हो जाएगा ना, ln क्या हो जाएगा यहाँ पे, ln मैंने RT NF माइनस ले लिया, तो इधर क्या हो जाएगा ln माइनस 1 बाई Zn2 प्लस, इसको भी RT NF बात कर दो। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे, ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे क्या है, E0 सेल, सो नेक्स्ट इट इज़ कमिंग E0 सेल, ओके, माइनस क्या हो जाएगा ना, RT बाई NF। अभी देखो ln, अगर हम इसको थोड़ा डिसोशिएट कर दे, ln 1 माइनस ln Cu2 प्लस माइनस ln 1 प्लस ln Zn2 प्लस, ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, और Zn2 प्लस माइनस Cu2 प्लस, तो ln में माइनस का मतलब क्या है, डिवाइड में आ जाएगा। E0 सेल इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे, RT बाई NF, उधर क्या हो जाएगा ना, ln है ना Zn2 प्लस बाई क्या हो जाएगा इधर ना, Cu2 प्लस, ठीक है। तो अभी इसको आप लॉग में कन्वर्ट कर दोगे तो क्या हो जाएगा ना, 2.303 आपको कंसिडर हो जाएगा, तो E0 सेल माइनस 2.303 RT NF ln Zn2 प्लस बाई Cu2 प्लस। अभी देखो यहाँ पे n की जगह में 2 यूज़ करेंगे, और इसके बाद R के 8.314, R इक्वल्स टू क्या है ना 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, और T के 298 केल्विन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, R क्या हो जाएगा, R तो हो गया, F के हिसाब से हम लोग क्या यूज़ करेंगे 96,500। तो ये सब की यूज़ करने के बाद इसका एक्चुअली रिजल्ट क्या आ जाएगा, E0 सेल माइनस 0.059 बाई 2 है ना, 2 क्यों आएगा ना, इसके इनका वैल्यू 2 है, ln ln नहीं आएगा, लॉग आ जाएगा, यहाँ पे भी लॉग आ जाएगा, तो लॉग है ना Zn2 प्लस बाई Cu2 प्लस, ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला।